Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, our today's topic is direct and indirect speech. We also call it direct and indirect, okay? So that is also not wrong, and this is the more appropriate way of speaking. So before I move into the formulas and the rules, I would like to know from you people, what do you mean by direct and what do you mean by indirect speech? What is direct speech? What is direct speech? Yes, there are two ways of saying which someone else said in the past. Okay, if suppose somebody said something in the past and we have to report what that person said. So how we are going to present it? There are two ways. Either we can present it in the direct speech or we can present it in the indirect speech. Now I'm going to explain it to you people, what are the two ways, what are the two methods, and how to change direct into indirect or how to change indirect into direct. So our first step, what is our first step? As you can see, I have written over here, change the pronoun. Like suppose if in your statement, if there is any pronoun like I, we, he, she, they, it can be any pronoun. If the pronoun is given over there, then while changing any statement, any sentence from direct to indirect, you need to change the pronoun. Like for example, if the pronoun he is there, then while changing it into indirect, it will be his, okay? So we will see it through the examples. When I'll show you the examples, you'll come to know about it. Then the second one is change the reporting verb. Now what is reporting verb here? When we are reporting, when we are saying something which somebody else said in the past, then we are going to change the verb. That will be in the past tense. We are going to change it into the past tense. Then backshift the tense. Now whenever we change direct into indirect, we change the tense into the past tense. The tense is shifted back. This is why I have written over here backshift of the tense. Then change the time and place expression. If in your sentence any time or any place expressions is given over there, then you need to change that time and place expressions as well. Now coming to examples, like for example, take a statement like for example, suppose you are planning to go for a movie along with your friends, okay, and one of your friend couldn't join you people, and you want to report to your other friends that why he couldn't join the movie, or why he couldn't join you people for the movie, okay. So suppose the name of your friend is John, for example. So if you want to report to your friends that John said, now you are going to present it in direct speech. Suppose that you are presenting it in the direct speech, then it will be in this way. John said, I have an appointment in the evening. Fine. Now you see, you can see here that I have enclosed it in inverted commas. We call it inverted commas as well as we call it quotation mark, okay. So this is the quotation mark, this one, okay, quotation mark, or you can call it inverted commas. So children, this is the first difference between direct and indirect speech. Whenever we write anything in direct speech, okay, we enclose it within the inverted commas, okay. We cannot leave this inverted commas because the direct statement said by this person is always written within the inverted commas, okay. So now you are going to inform to your friends in this way that John said, I have an appointment in the evening. Now this I have an appointment in the evening is a statement said by John. This is not your words, this is the words John said to you, and you are presenting as it is. You are not making any changes over there. तो डायरेक्ट का मतलब होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं,
स्पीकर के, जो भी आपका स्पीकर है, जो पास्ट में स्पीकर ने आपको जिस तरह से बताया, आपने एग्जैक्टली उसी वे में उसको प्रेजेंट किया, उसको रिपोर्ट किया, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अगर आप इसी चीज़ को आपको इनडायरेक्टली बोलना है, तो यू विल से जॉन सेड दैट। नाउ यू सी, यहाँ पे हमने ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, इसको हमने दैट से रिप्लेस किया। जॉन सेड दैट, नाउ द प्रोनाउन आई, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, चेंज द प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आई है, जो कि एक प्रोनाउन है, तो आपको प्रोनाउन को चेंज करना ज़रूरी है। जॉन सेड दैट ही, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हैव है। नाउ यू सी, कमिंग टू द टेंस, ओके, हैव यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। जब आपको जॉन बता रहा था दैट आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन द इवनिंग, वो प्रेजेंट टेंस में था, वो प्रेजेंट की बात कर रहा था। बट नाउ दैट इज पास्ट, व्हेन यू आर रिपोर्टिंग इट टू योर फ्रेंड्स, दैट इज पास्ट, सो यू आर गोइंग टू चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट टेंस। सो जॉन सेड दैट ही हैड, हैव विल चेंज इनटू हैड, ओके, ही हैड एन अपॉइंटमेंट in the evening. Now you see, we don't have any time expression over here. In the evening is the time expression. अगर आपको इससे भी, अगर आप सेम डे रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इन द इवनिंग, और अगर आप कुछ दिनों बाद रिपोर्ट कर रहे हैं तो यू कैन से दैट इवनिंग, ओके। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट थिंग इज़ कि डायरेक्ट में होता क्या है कि हम एक्चुअल वर्ड्स को चेंज नहीं करते। जो भी स्पीकर का एक्चुअल वर्ड होता है, एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, हम उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में कभी भी स्पीकर का एज इट इज़ एक्चुअल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे तो वो विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज होगा। ये कोटेशन मार्क अगर हमने छोड़ दिया तो डायरेक्ट स्पीच आपका पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच का। लेकिन जब हम उसे रिप्लेस करते हैं, जब हम उसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट से, तो हम इस पूरे चीज़ को रिप्लेस करेंगे दैट से। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट का यूज़ करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें इनडायरेक्ट में यूज़ करना है, उसे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। कभी कभी होता है कि हम वाइल स्पीकिंग इनफॉर्मल वे में हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं, किसी किसी स्टेटमेंट में वो एक सिचुएशन होता है। बट जब भी हम फॉर्मल वे में इसे चेंज करेंगे, रिटन में जब भी हम चेंज करेंगे, तो हमें दैट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो बेसिकली अभी आपने ये जाना कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। द फर्स्ट थिंग कि डायरेक्ट में हम स्पीकर के एज इट इज़ जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट में हम उसी चीज़ को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में प्रेजेंट करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज किया है। कोई भी स्टेटमेंट, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है कि हमने उसको प्रेजेंट किस तरह से किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ एज आई सेड देयर आर 4 स्टेप्स। आपको कोई भी आपका स्टेटमेंट हो, उसमें अगर प्रोनाउन है तो यू हैव टू चेंज द प्रोनाउन। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको आपको चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ओके। तो आप सेट, इसका एक रूल होता है, देयर आर फ्यू रूल्स। अगर आपके स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो वो चेंज होगा टोल्ड में, क्लियर। अगर सेड है तो वो एज इट इज़ रहेगा, सेड कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेड ही रहेगा। अगर से टू है तो वो चेंज होगा टेल में, क्लियर। और अगर सेज टू है, SAYS, तो वो चेंज होगा टेल्स में। दिस इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब। आपको कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा तो उसमें आपको ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स ही मिलेंगे। आइदर इट विल बी सेड टू और इट विल बी सेड,
either it will be say to or it will be says to। तो अगर said to है तो आप उसको told में चेंज करेंगे, said है तो आप उसको said में ही रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। say to है तो वो tell में चेंज होगा और says to है तो वो tells में चेंज होगा। तो ये हो गया चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखा होगा आपने कि मैंने इस स्टेटमेंट में चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है said, तो मैंने वहाँ कोई भी चेंजेस नहीं लाए हैं। लेकिन अगर कुछ और होता, सेड टू होता या सेज टू होता, तो मैं उसको अकॉर्डिंग टू द रूल उसको चेंज करती। तो आपके स्टेटमेंट में अगर कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये है तो आपको उसको उसके रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नाउ बैक शिफ्ट ऑफ द टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी स्टेटमेंट जब आप डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। वो प्रेजेंट टेंस में, जब स्पीकर बोल रहा होता है तो वो प्रेजेंट टेंस में बोलता है, लेकिन जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको पास्ट टेंस में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पास्ट टेंस में होगा। तो यू हैव टू बैक शिफ्ट यानी कि आपको उसको पास्ट में ले जाना है। दिस इज पास्ट, ओके। देन चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। अगर आपका टाइम है तो आप उसको चेंज करेंगे। लाइक टाइम एक्सप्रेशंस की बात अगर मैं करूँ, इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, yesterday will change into previous day, tomorrow will change into next day, you can also sometime we also use the day after, okay। so ये कुछ टाइम एक्सप्रेशन है, जैसे टुडे आपका दैट डे में चेंज हो गया, येस्टरडे आपका प्रीवियस डे में चेंज हो गया, टुमारो आपका नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, टू नाइट आपका दैट नाइट में चेंज होगा। सो आपका कुछ और टाइम बेसिक सा है, हेयर आपका देयर में चेंज होगा, नाउ आपका देन में चेंज होगा, ओके। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स। ये आपका टाइम एक्सप्रेशन होता है। इस तरह के अगर आपके स्टेटमेंट में कोई भी टाइम एक्सप्रेशंस हैं तो आप उसका रूल देख लें कि जब आप उसे चेंज करेंगे तो आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे। हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, ये एज इट इज़ हमें यूज़ करना है। क्योंकि जब भी हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसके साथ आपको ये रूल्स ज़रूर बताए जाते हैं कि अगर इस तरह का टाइम एक्सप्रेशन है या उस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको आपको किस वे में चेंज करना है। दिस इज़ द बेसिक रूल एंड यू नीड टू मेमोराइज इट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके। तो अगर आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपके सामने पूरा चार्ट खुल कर आएगा और आप उसको उसके अकॉर्डिंग पहले लर्न कर लें, पहले मेमोराइज़ कर लें। उससे क्या होगा, जब आप उसे मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपके सामने जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम वाइल डूइंग इट, वाइल चेंजिंग एनी डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ना चिल्ड्रन, ये तो आपका था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो आप उसको डायरेक्ट में कैसे करेंगे। लाइक यहाँ पे ये मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ओके। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आपका इनडायरेक्ट में है तो आपको उसको डायरेक्ट में चेंज करना होता है, जस्ट इसको रिवर्स करना होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द इवनिंग, तो मैं कहूँगी जॉन सेड, अगर डायरेक्ट स्पीच में कर रही हूँ तो जॉन सेड कॉमा उसके बाद ही हैड एन अपॉइंटमेंट। अब जब जॉन ने बोला था तो जॉन ने खुद के लिए ही तो यूज़ किया नहीं होगा, उसने खुद के लिए आई यूज़ किया होगा। तो ये देखिए फिर वापस से वो डायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन द इवनिंग। जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट में करते हैं, और जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं, ओके। तो दिस इज़ जस्ट द रिवर्स वे ऑफ चेंजिंग। अगर आपको एक तरीका समझ में आ गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो आपको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन हैव मोर एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रब द बोर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, मैं फिर यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोनाउन का ही ले रही हूँ। शी सेड, कॉमा,
देन इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। अच्छा, इसके बीच में आपको थोड़ा फासला रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कॉमा लगाया और यहीं पे आपने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो शी सेड कॉमा, then you have to open inverted comma. Okay, this is open inverted comma and you can also call it quotation mark. She said I am playing close full stop. Okay, again as I said कि इसके बीच में थोड़ा फासला रखना है, तो फाइन। अब ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, शी सेड आई एम प्लेइंग, ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो आपको इसको इन्वर्टेड आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो इट विल बी शी सेड दैट। मैंने आपको अभी बताया कि ये पूरा जो हम रिप्लेस करते हैं दैट से रिप्लेस करते हैं। शी सेड दैट शी, अब ये देखिए ये प्रोनाउन आई है, चेंज द प्रोनाउन, मैंने आई को शी में चेंज किया है, शी। Now you see that here it is am। अब मुझे इस वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो she was playing। मेरा रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे said था, इसलिए said will remain as said, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो दिस इज़ अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमेशा हमें सीधे वे में मिले, हमें कभी कभी आगे पीछे भी मिल सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन फॉर्म में है या कोई और अंदाज में है, लाइक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है वो डायरेक्ट स्पीच से शुरू हो रहा है। Who has eaten all the cookies? अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। Asked my mother। अब आप देखिए कि अब तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाएं उसमें आपका स्टेटमेंट जो भी डायरेक्ट स्पीच का था वो बाद में था, लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट स्पीच पहले है और फिर आप स्पीकर के बारे में कि मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हु हैज़ इटन ऑल द कुकीज़, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है आस्क्ड माय मदर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय मदर, मेरे मदर का जो भी डायरेक्ट स्पीच जो भी स्टेटमेंट था मैंने उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? अब इस चीज़ को हम अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पूरा जो यहाँ पे फर्स्ट है स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं इसको शुरू करूँगी इस तरह से, माई मदर आस्क्ड that all the cookies। फाइन, अब देखिए ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। हु हैज़ इटन ऑल द कुकीज़ आस्क्ड माई मदर आस्क्ड दैट हु हैज़ इटन ऑल द cookies। Sorry, now I made a mistake over here. I have to change the tense, who had eaten all the cookies। Okay, so यहाँ पे has present में था, but when while will change it into indirect, will change the tense as well। So my mother asked that who had eaten all the cookies। तो ये एक अलग दूसरी तरह का स्टेटमेंट हो गया जहाँ कि आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम इंटरोगेटिव स्टेटमेंट कहेंगे, बिकॉज दिस स्टेटमेंट वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन। इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहाँ कि आपको डायरेक्ट स्पीच पहले स्टेटमेंट में मिलेगा और फिर आपको उसको चेंज करना होगा। लाइक आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक और दूसरे तरह का स्टेटमेंट ले रही हूँ।
Nikhil, said Ravi, I have quit the job. Fine. Ab now I have to change it into indirect. So it will be Nikhil said Ravi that he had quit the job. अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, निखिल सब्जेक्ट है एंड रवि ऑब्जेक्ट है, बिकॉज दिस इज सेइंग समथिंग एंड दिस इज रिसीविंग समथिंग. ओके, जब भी हमारा कोई रिसीवर होता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है और जब भी कोई एक्शन कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो वो सब्जेक्ट होता है. तो ये एक आपको दूसरी तरह का स्टेटमेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया. इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. जब भी आप किसी बुक से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स, ओके, मेनी स्टेटमेंट्स जो कि अलग अलग अंदाज में दिए होंगे. आपको उसको देखना है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चेंज नहीं होगा. आपको सिर्फ स्टेटमेंट में फाइंड करना है. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अनदर थिंग. देन यू नीड टू चेंज द प्रोनाउन, देन यू नीड टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया कि होंगे तो इस तरह से होंगे, इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा. देन बैकशिफ्ट द टेंस, जो भी टेंस है आपको उसको बैकशिफ्ट करना है, उसको पास्ट में करना है. देन चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन. अगर आपके स्टेटमेंट में कोई भी टाइम या प्लेस एक्सप्रेशन है तो आप उसको चेंज करेंगे. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट द डायरेक्ट एंड indirect speech. If there is any problem, please let me know in the comment section, and please don't forget to subscribe our channel. Please share it more and more to get more informative videos, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.